Namaste student, welcome in RSV Group of School YouTube channel. Today I am going to start with Political Science chapter 1st and topic number 5. Topic is fundamental rights. We have already discussed in the topic number 4 three fundamental rights of the Indian Constitution. Basically there are six fundamental rights are the Indian Constitution provided to the citizen without any discrimination. First fundamental right which was provided by the Indian Constitution, it was right to equality, article number 14 to 18. Next fundamental right is provided by the Constitution of India to the Indian citizen, it is right to freedom. It is regarding to the article number 19 to 22. Next we have discussed about the third fundamental right of the Indian Constitution, right against exploitation, which was provided in article number 23 and 24. Let's revise about that topic. Fundamental rights are those claims which are provided by the society and protected by the law. It is are a claim and protected by the law. Basically there were the 7 fundamental rights in the Indian Constitution, but at present only 6 fundamental rights are there in the Indian Constitution. Last fundamental right, right to constitutional remedy, is protect to all fundamental rights of the citizen. Next we are going to discuss about right to freedom of religion. Right to freedom of religion is fourth fundamental rights of the Indian Constitution provided by the citizen of India country. First of all, right to freedom of religion. Why the Indian Constitution is provided right to freedom of religion to the citizen? First of all, India is a secular state. Secular means no religion is provided the special attention by the government. There is no official religions of the Indian Constitution. Regarding to the Constitution, there will be no official religion of the country. There is no religion of the government, and all the religions are equal before the eye of law. Secular का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना. जितने भी रिलीजन है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख कम्युनिटी है, बुद्धिज्म कम्युनिटी है, सारे रिलीजन हमारी सोसाइटी में क्या है, इक्वल है. सबको एक जैसा सम्मान मिला है, सबको एक जैसी हम कह सकते हैं कि समानता दी गई है हमारे कानून के द्वारा. तो सेकुलर स्टेट होने की वजह से जो सिटीजन्स हैं उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी प्रोवाइड किया गया है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 25 to 28. Firstly, we will one by one discuss about the article number 25, 26, 27 and 28. First, we discuss about article number 25. Article number 25, freedom of conscience. इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने बिलीफ को, आप अपने रिलीजन को अपने तरीके से क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो. इसका मतलब ये है, कॉन्साइंस का मतलब कि आपका जो गॉड के साथ रिलेशन है उसको आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. आपको पता है हमारी सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन है. हिंदू रिलीजन के जो पीपल हैं वो अपने बिलीफ जो है वो सोसाइटी के अंदर या गॉड के लिए जो बिलीफ है, अपने जो विश्वास है वो अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब उनकी जो कनेक्टिविटी गॉड के साथ में होगी उसका तरीका सबका क्या होगा, अलग अलग होगा. तो ये फ्रीडम सबको दिया गया है कि आप अपने गॉड के साथ में रिलेशंस जो है उसको रिप्रेजेंट करें अपने अपने तरीके से, अपने अपने हम कह सकते हैं तौर तरीके, अपने वर्शिप के जो तरीके हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर. ये फ्रीडम हमें आर्टिकल नंबर 25 प्रोवाइड करता है. अब आर्टिकल नंबर 25 एक और फ्रीडम हमें देता है, राइट टू प्रोफेस, अपने फेथ को रिप्रेजेंट करना. प्रोफेस का मतलब होता है अपने फेथ को रिप्रेजेंट करना. इट इज आल्सो राइट रिगार्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 25. राइट टू प्रैक्टिस. राइट टू प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस में ला सकते हो. प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि मैं हिंदू रिलीजन की प्रैक्टिस उसको लेना चाहता हूँ तो आप हिंदू रिलीजन को एज ए प्रैक्टिस यूज कर सकते हो. तो यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दोज आर इन आवर सोसाइटी. राइट टू प्रोपेगेट करना, प्रोपेगेट इट इज रिगार्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 25. प्रोपेगेट करने का मतलब है प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का, अपने रिलीजन
वैल्यूज है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू प्रोपेगेट योर रिलीजन. इट इज फ्रीडम प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ कम ऑन द आर्टिकल नंबर 26. आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. जैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीजन है, हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन है, सिख रिलीजन है, हम कह सकते हैं जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, डिफरेंट रिलीजन्स के ग्रुप के पीपल हैं. अब वो जो पीपल हैं, रिलीजियस ग्रुप के पीपल हैं, वो अपने रिलीजियस मैटर को मैनेज कर सकते हैं अपने तरीके से. अपने तरीके से मतलब दे कैन मैनेज द रिलीजियस अफेयर. उनकी जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उनको वो अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं. नो अदर रिलीजन विल बी इंटरप्ट इन द पर्टिकुलर रिलीजन अफेयर. रिलीजियस अफेयर की एक्टिविटीज में जैसे हमारे फेस्टिवल्स का हम एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी. दिवाली इज देयर, होली इज देयर, रक्षाबंधन इज देयर. तो ये जो रिलीजियस अफेयर्स हैं आप उनको अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने तरीके से उनको आप मैनेज कर सकते हो. इट इज योर राइट. मुस्लिम रिलीजन की बात करें, वो अपने ईद फेस्टिवल को जिस तरीके से अफेयर को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं ओकेजनली आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं. ये आपका राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है. अब 26 आर्टिकल के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो स्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि धर्म को लेके आप किसी भी तरह की कोई संस्था खोल सकते हैं. धार्मिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार. आप देखिए बहुत सारे जो हिंदू पीपल है अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए वो हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि वो अपने रिलीजन को क्या कर सके, प्रोपेगेट कर सके. उसमें वो हिंदू रिलीजन के रिगार्डिंग जो टीचिंग्स है वो उसको प्रोवाइड करते हैं. और कोई भी रिलीजन हम एग्जांपल लेते हैं, मुस्लिम रिलीजन है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं. उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में क्या अधिकार दिया जाता है कि आप अपने धर्म को वहां पे प्रचार प्रसार कर सकते हैं. उन अपनी रिलीजन की जो टीचिंग्स है, अपने रिलीजन की जो वैल्यूज है उनको आप वहां पे पढ़ा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की गई हैं. रेस्ट्रिक्शंस में ये बताया गया है कि भाई आप किसी अपने धर्म का तो आप कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, रिलीजियस आप कोई संस्था खोल सकते हो, धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार तो आपको है, लेकिन आप दूसरे धर्म को वहां पे क्या नहीं कर सकते, नीचा नहीं दिखा सकते, उसकी आप बुराई नहीं कर सकते. मतलब आप अपने रिलीजन को आगे बढ़ाइए, आप उसके लिए कोई संस्था खोल सकते हैं, उसकी टीचिंग्स वहां करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर दूसरे रिलीजन को वहां पे क्या नहीं कर सकते, बैकफुट पे नहीं ला सकते. ये वहां पे क्या होगा, पनिशेबल होगा और इट इज आल्सो द प्रोहिबिट. इसके लिए मना किया हुआ है. अब आप इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने रिलीजन के लिए चैरिटेबल पर्पस का यूज कर सकते हैं. मतलब चैरिटीज आपने नाम सुना होगा, उस चैरिटी के अंदर क्या होगा, फंड होगा. फंड कैसा होगा, उस पर्टिकुलर रिलीजन के रिगार्डिंग फंड प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये जो फंड है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. इसका मतलब आप चैरिटीज बना सकते हो, अपने रिलीजन को लेके आप चैरिटीज फंड बना सकते हो. आप कोई चैरिटी के अंदर अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए एक फंड इकट्ठा कर सकते हो. ये आपको राइट प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल नंबर 26 के अकॉर्डिंग. अब बच्चों हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27. आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ द टैक्सेस. आपको पता है इंडिया के सिटीजन से वैसे तो टैक्सेस पे करते हैं, ऑल आर पेइंग द टैक्सेस हु आर कम इन द क्राइटेरिया टू पे द टैक्सेस. ओके, तो फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस यहाँ पे क्यों आया है रिलीजन के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आप अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी टैक्सेस पे कर सकते हो. जैसे कोई बड़ा रिलीजन का ग्रुप है, एक बहुत बड़ा धार्मिक एक हम कह सकते हैं ग्रुप है, उस ग्रुप ने क्या किया, एक फंड तैयार करने के लिए पे आप अपनी मर्जी से उसमें क्या देना चाहते हो, टैक्स पे करना चाहते हो. क्यों, क्योंकि आप उस अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो. तो फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इस तरह के टैक्सेस में कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके ऊपर. बाउंडेशन का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से अगर वहां टैक्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप पे किसी भी तरह की कोई बाउंडेशंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी. अब बच्चों हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की. आर्टिकल नंबर जो 28
28 है वो भी रिलीजियस अफेयर को मैनेजमेंट करने के रिगार्डिंग है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। दीज आर रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रिलीजन को लेके जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो आप ओपन कर सकते हैं। रिगार्डिंग टू आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 हमें क्या स्वतंत्रता देता है? ये हमें फ्रीडम देता है कि आप अपने रिलीजन से रिगार्डिंग कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन स्टेट के रिऑर्गेनाइज हो सकता है और कोई कम्युनिटी ओन्ड हो सकता है। तो इट प्रोवाइड द फ्रीडम टू द सिटीजन टू a religious practice regarding to the institution of the particular religion. So in this topic we have discussed about right to freedom of religion. आर्टिकल आपको याद करना है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हमने क्या पढ़ा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 में आपको ये 4 पॉइंट लर्न करने हैं। It may be come in your exam: freedom of conscience, right to profess, right to practice, right to propagate. Article 26 में आपको ये 3 पॉइंट याद करने हैं। Freedom to manage the religious affair, यहाँ हमने बात की थी religious institutions की, charitable purpose से आप अपना religious purpose है वो solve कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 26 में आ जाएगा बच्चों। और आर्टिकल नंबर 27 में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप अपने रिलीजन के रिगार्डिंग जो टैक्सेस है वो पे कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 28 में क्या आएगा? इट इज रिगार्डिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर 29 and 30. So thank you so much. Namaste.